मैं 3 बार शूट कैंसिल कर चुका था, ठीक है, अब चौथे बार कैंसिल करने के लिए मैं क्या बोलूं. Since they are looking for a CTO, which is the character of Jeetu's position, I was like कि मुझे गाली ना पड़े. मतलब होता है ना कि अरे क्या मतलब है इसका, नहीं है जीतू अभी इस यूनिवर्स में. I know it's been at least a month since Pictures season 2 dropped. लेकिन हमने बात नहीं की यार मेरे दोस्तों से from Pictures season 2. So I thought why not take a little bit of your time and have the stars of Pictures season 2 on Film Companion Local with me, of course, Arunab, Naveen and Ranjini. Thank you so much for joining करने के लिए. Thank you for calling us. Okay, let's start with congratulating you for the success. Like Mubarak ho. Thank you. thank you. Arunab, how do you decide कि तुम्हारा शो जो है, क्योंकि तुम तो OTT के भीष्म पितामह हो, तो बता दो, how do you know it's successful? I think conversations, because and see, the ultimate is, of course, when you are given permission to make the next season, that is the ultimate stamp that it has worked. Correct. To a certain degree, which which so that people want to see more. Correct. So that's I think there. And the second part is conversations. If it drives conversations outside the walled garden of a platform, I think that is a definite marker. Correct. Which I think I think we could see from this show that it happened. So that is these are the two things I think primarily, which and of course then there are certain research firms like Ormax, and there are sort of who are वो आपको बताते हैं कि कितने viewing numbers वगैरह? I don't think they do that. I think, but like in fact the first time we saw on Film Companion itself, like Film Companion does this weekly, which actually is pretty much the industry standard for people to know कि अच्छा अभी कौन से top 5 है, top 10 है, and Ormax does it. So they must be having some data which they. पर आपको बताते हैं ये लोग कि कितने लोगों ने देखा आपका शो? Yeah, I think to a certain degree what they can share, I think they do. They definitely and when you're conceiving like the ultimate test is next season बनाना है, that means people have a decent critical mass has watched it. Yeah, and then there are certain learnings also which they share, which also then tells you the idea of okay, maybe this needs to be shorter. Correct. Or this needs to be longer, or maybe you can make more episodes. Correct. There have been cases where they have said, let's make more episodes and shorter episodes. Correct. So I think they do share some data. Of course, we don't even expect as partners that they'll share everything. At least we as creators who partner with almost all the platforms, yeah, we know that there are certain part of businesses which which we may not even need to know, and then there are certain part which will take the programming and the show forward. बिल्कुल. I think they all do that, and they're very, very careful. And I think over the last 5 years, we have come a long way. We keep forgetting that this is a very, very nascent industry, and it's technology, it's content, it's so many things put together. बिल्कुल. So sometimes people are very, अरे हमें ये नहीं, but I think with time, by law of averages, we have come very fast forward. In जो 3 साल पहले होता था उससे ज़्यादा हमें चीज़ें पता है. बिल्कुल. And everybody is working. The marketing is like especially with Pictures. I'll say that I think with Z5's team, the content and marketing and all of us coming together was very, very organic, and that I could see that yes, we have walked forward. All the partners, all creators are learning how to work, because these are 3 big clusters of people. बिल्कुल. So that happens. अब तो शो लॉन्च हो चुका है, दोस्तों आपने देख भी ली होगी, लेकिन I remember when we talked pre-launch, we were looking forward to a story that you had said 7 years ago, and 7 साल बाद to revisit those characters could have been challenging. लेकिन मैंने जब I got into the show because I'm a fan of season 1, I was so scared. I'll be honest with you. I was so scared. I because think scared was a common feeling. We were all audience को डर लग रहा है भाई कि but it was so amazing. So I'm going to start off by saying that I was taken into the depths of it. किरदार वैसे ही प्रोग्रेस हुए थे जैसे उनको करना चाहिए था. ऑफिस शायद बड़े हो गए होंगे, प्रगति में प्रगति हुई ही, लेकिन the character was still the same. Naveen was still Naveen, and even though Naveen became somebody else, and we'll talk about your character arc, because it was very interesting to see him go a little different. I just thought that you guys honestly held up the promise, but I also felt कि इस season के साथ you went a little dark, which I did not expect.
Okay, and not dark क्योंकि because for any other Slightly reason. more intense we went. Yeah, it was the reality, you know, कि क्या होता है जब चीजें नहीं चलती हैं. Talk to me, creative call. When did this happen? Like I खुशी think- नहीं, हम इनको गम दिखाएंगे. अरे my wife श्रुति says कि यार सारे एक अभी लास्ट ईयर जितने सीजन्स आए हैं सब्सिक्वेंट सीजन्स सब में एंडिंग सैड है. हाँ. तो शी वाज लाइक अरे यार मतलब हैप्पी एंडिंग्स करो यार. तो आई थिंक द क्रेडिट हैज टू गो टू वैभव बंधु, कैप्टन ऑफ आवर शिप. ही वाज द डायरेक्टर. Yeah. I co-directed with him, but he always said that we have to be honest to the real setup which has happened. हम दोनों ने डिस्कस किया कि रियल होना चाहिए. पिछले बार भी रियल था, बट पिछले बार कहानी थी सिर्फ स्टार्ट करने की, जो बहुत लेकिन रोमांटिक होती है. उम्मीद की कहानी थी हाँ, ना. उम्मीद की और कहानी, उम्मीद की hope है. कहानी में हमेशा आप होपफुल होते हो. होपफुल correct. होते हो और थोड़ा रोमांटिसिज्म होता है, हमें ये कर दिखाना है. हाँ. जब हमने बात करी कि 2-2.5 साल हो गए हैं कंपनी को और अब चला रहे हो, तो वो जो एक शिट गेट्स रियल वाला जो होता है वो हुआ. और उसमें कहानियां तो रियल कहानियां बहुत ज़्यादा डार्क है. मतलब जो कहानियां हैं, और हमने एक VCs को बुलाया है, हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात किया. विनीता जो शुगर की फाउंडर हैं से लेके गगन एक VC हैं, प्रेरणा एक VC है जिन्होंने रिधि के कैरेक्टर्स को बताया, हाना मनीषा को फाउंडर्स जो कि CTOs हैं, जिसके ऊपर रौंजनी का कैरेक्टर. तो बहुत 4-5 कॉमन चीज़ें होती हैं. कोई छोड़ के चला जाता है, पैसे नहीं होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ये चीज़ें रियलिटी है. और उसमें वैभव और हमने डिसाइड किया कि यार रियल रहते हैं, बिकॉज वो 7 साल पहले का मैजिक रिक्रिएट करने जाएंगे ना तो फंस जाएंगे. और वो नवीन भी बोलता था, आई थिंक ऑल ऑफ देम सेड कि लेट्स जो सोच के होता है ना ईमानदारी से बनाते हैं जो सही है, क्योंकि वो जनरली हमारा एक प्रॉमिस रहता है कि यार हम ऑथेंटिक टच करें. और ये सब्जेक्ट भी रोहिणी ऐसा है कि स्टार्टअप इज अ वेरी कॉमन टॉपिक टुडे. बिल्कुल. और उसमें अब That's the beauty that's of the- it, हाँ. you know, because I don't know, somehow let's put it in context, right? जब 7 साल पहले जब पहला सीजन आया था, you know, I used to think कि ये स्टार्टअप वाले लोग, honestly मैं अपनी बात कर रही हूँ, because मैं तो नौकरी पेशा, तो मैंने कहा यार ये स्टार्टअप वाले लोग. And the funny thing is that हम जब when we were growing up, you know, we used to just call them business people. You know, अभी उसको हम कहते हैं कि अब बिजनेस वाले वो बिजनेस करते हैं. अब वो स्टार्टअप. लेकिन in the last 7 years, look at what's happened. Not only has the startup, you know, industry boomed, not only is India a more friendly place for startups, you also have shows within the space, like जैसे कि Shark Tank है, right? Shark Tank का आना, I feel just, you know, I don't know, in some way has given more validation to our show, simply because लोग जानते हैं कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं असल में. अवेयरनेस बढ़ गई, एजुकेशन बढ़ गया, लोगों को टर्म समझ में आने लग गए. तो वहीं से कॉल लिया गया कि यार जो होता है वो दिखाते हैं, वो लेस रोमांटिक है. तो ये तो फॉर श्योर. हाँ, बट ये एक ब्रेव कॉल था मेरे हिसाब से. हाँ, आई थिंक ब्रेव भी था, और साथ में आई थिंक ऑनेस्टली थोड़ी हमारी भी मतलब हालत ख़राब थी. एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर. अभी कोई अप्लाई कर रहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, 7 साल बाद कोई किसी शो का दुनिया में सेकंड सीजन नहीं आया. ठीक है, तो सबने शो ड्रॉप किए मतलब. तो हमने कर लिया, और लोगों को यार वो मैजिकल था कि लोग थके नहीं 7 साल तक. वेरी ऑनेस्टली अगर लोग थक जाते ना थोड़ा, तो हम शायद नहीं बनाते. करेक्ट. मतलब वो इसके DM हमारे उसमें हर YouTube कमेंट में नीचे इसका सीजन 2 कब आएगा, ट्रिपलिंग 3 आ गया, ये सब आ गए, अरे ये भी आ गया, अब ये कब तो याद है आएगा. हमको, हमने बात की थी इसके बारे में. तो मुझे लग रहा है उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया, और फिर उससे आया कि यार ईमानदारी से बनाते हैं, जो होता है वो बनाते हैं, और फिर नहीं जाते हैं. फिर भी एंड तक भी डरे पड़े थे. मुझे लगता है जब आपने टीजर डाला ना, जब तो उसका जो रिस्पांस आया तो लगा कि हाँ अभी शायद मतलब people चलो भैया. तो Fantastic. Naveen, your character goes really dark, yeah? मतलब oh my god. At some point I almost felt like ये तो अपना हीरो है, लेकिन ये अपना हीरो मतलब गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है. How does someone like you, who's an actor, agree to the fact that ये शो के लिए ज़रूरी है, okay? But at the same time ये हीरो का आर्क नहीं है. तो तुमने कैसे, you know, how did you deal with that? तुम्हारा क्या था? एक्चुअली मैं बताऊं सच में रोहिणी, पहले तो मैं ऐसा सोचता नहीं था. यू नो, पहले ऐसा लगता था ग्रे करना है, मज़ा आएगा. लेकिन जब एस्पिरेंट्स आया ना, तो उसमें मुझे ऐसा लगा यार कई जगह मुझे गाली पड़ रही थी. तो मुझे समझ में आई ये बात कि लोग पहले क्यों ऐसा बोलते थे कि अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो. जबकि शुरू में मुझे हमेशा लगता था कि
ज्यादा मजेदार कैरेक्टर्स तो वो होंगे जिनमें बहुत सारे कलर्स हों। Correct. बट जब एस्पिरेंट्स आया ना तो मुझे कई जगह गाली पड़ रही थी। मुझे लग रहा था अरे यार मैंने इतनी मेहनत की, हालांकि बहुत प्यार मिला, लेकिन लग रहा था कि उतना लाइकेबल नहीं हूँ नहीं शायद था, मैं। yeah. कुछ चीजें हैं मैंने करी हैं शो में और लोगों ने पकड़ ली है, वो नॉट लाइकेबल। सो जब पिक्चर्स में ऐसा सोच रहे थे ना अर्नाब और टीम, तो ऑनेस्टली मेरा बार बार ये क्वेश्चन होता था कि यार इससे कम लाइकेबल हो रहा है ये, यू नो। अब मैं भी उस तरीके से सोचने लग गया, जैसे मैंने सुनता था कि हाँ एक्टर्स इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, हाँ, exactly. और मैं भी वैसे, लेकिन स्टिल मेरा एक साइड मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं ये चीजें। जैसे मैं अब सक्सेशन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हम सभी Oh बहुत my बड़े God. fan हैं। तो उसमें अब सब कमीने एक शो में। हाँ, अब उसमें अगर मेरे को कोई कैंडल रॉय बोलता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। करेक्ट। तो यहाँ तो मुझे मौका मिल रहा है, हाँ, तो फिर मैं बस ये तो दोगलापन हुआ। हाँ नहीं, मेरी इनसे बस ये बात होती थी कि wherever he is coming from, नो, जैसे ये मुझे कहते थे नहीं नवीन बंसल खराब काम कर रहा है, और मैं अब नवीन बंसल को पढ़ समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लग रहा था he is also coming from somewhere, you know, he is working for his team। अब उसको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है तो वो अपनी टीम पे फटा है। The only thing I didn't understand even till the last point was the last thing that he says, कि वो आया फोटो खिंचा के चला गया। बट मुझे लगा ये छोटी मोटी चीज भी हो सकती है, और मे बी वो नहीं, but I love that seed. हाँ, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। That to me is the seed of season 3. Yeah. You know, because then it shows that, you know, suddenly this is beyond just the moment. You know, this could be like, you know, maybe he has become a megalomaniac. Maybe इसको नहीं लगता कि co-founders की जरूरत है, and that's the bigger hint to the story, right? कि यही तो कहानी है कि जब लोग ऐसे, and honestly real life में यही होता है, you know, कि लोग अपने थोड़े से they can't control themselves. So I was just, I mean, I would have questions, I would argue with them, I would question them, but then I would go with what they feel is right. So हाँ, अभी because totality में तो story वो देख रहे हैं ना, मुझे still paper पे उतनी समझ में नहीं आती है, but finally when I watch the entire product, मुझे खुद भी तब समझ में आता है कि हो क्या रहा है। मैं तो DM के सीन से भी बहुत convinced नहीं था। मुझे लग रहा because I have never been in that place, in a position of power, in that position, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इनसे कह रहा था यार DM नहीं तो मेरा प्रोडक्ट बनवा के दिया है एक्चुअली, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट इतना जल्दी बना है, और अब मैं उसको फायर कर रहा हूँ। तो और मैं मतलब मैं बहुत ही बुरा भी बिहेव कर रहा हूँ टुवर्ड्स DM। मैं ये भी कहता था यार वो इक्विटी मांग रहा है तो गलत थोड़ी कर रहा है, मतलब क्योंकि मैं तो उसको खुद लेके आया हूँ और मैंने अभी तक उसको पैसे की बात नहीं करी है कि तेरे को मिलेगा कितना। आई एम ओनली मेकिंग माई पीपल वर्क फॉर मी। थर्ड एपिसोड क्या है, आप एम्पथाइज कर रहे हो नवीन के साथ, अरे जनता ने गाली दी उसको ये, लेकिन एक्चुअली नवीन बंसल कर क्या रहा है, ही इज मेकिंग एवरीवन वर्क फॉर हिम। सो आई मीन मैं कभी भी उस चीज से बहुत अग्री नहीं कर रहा था, बट देन फिर शायद इस किस्म के कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं यार। I saw a few of those calls that were taken by the character in the show, and I understand him. In fact, what would be really delicious is अगर अगले season में Naveen goes on this path where he actually becomes really successful and really hateful. And then the truth is that ultimately success can either leave you a good person or a successful person. See, I get the दोनों character. नहीं होते। I'm ready to play that character in other shows, but I was coming from the Naveen Bansal of Pictures 1. I know. तो मुझे वो लग रहा था, you know, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये what has happened to him. But you know, यही तो एक लॉन्ग फॉर्मेट की ब्यूटी है ना, that it gives exactly. you the scope to ये सीरीज grow. की ब्यूटी है, Yeah. सीरीज हाँ। फॉर्मेट में। फिल्म में तुम्हारी बात सही है कि बंदे का किरदार चेंज हो सकता है यार, he is a different person now, and that's amazing. Also, I had done aspirants पहले ना, तो मुझे Correct. लगता था यार क्यों उसको गाली पड़वा रहे हो, you know. Correct. तो ठीक है। ये इस यूनिवर्स में हम ये बात समझ सकते हैं, because it's perhaps a few of them would be overlapping fans. But even if you're just a fan of pictures and just a fan of Naveen Bansal, it's interesting because you know the truth is that people change, you know, and that's इस पे fine. बहुत डिस्कशन था कि आइडियल फाउंडर जैसा ये हो या फिर जो रियल हो, एंड देन मी एंड वैभव डिसाइडेड रियल कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। Yeah. आई थिंक आइडियल होंगे तो पता नहीं, क्योंकि सी अभी बहुत शोज बन गए, बहुत कहानियां हो गई, तो लोग यू नो पीपल हैव आल्सो बीन एक्सपोज्ड, Correct.
So they need to see reality at least in long form. They want to because they live with you for 5 episodes, 5 hours, 7 hours. I'd be very excited if that happened. But the वो truth सीन is, कटने भी वाला था by the way, वो एंड में कि अरे नहीं रखते हैं वैभव also was I'm saying so glad तुमने रखा. और बहुत तारीफ मिली है उस पॉइंट के लिए उस ये I was exact also not very convinced with that कि यार अभी तो रो पिट के आया है अभी तो सॉरी वॉरी बोला है इसने ऐसे ही आए कमेंट कैंडल मूवमेंट ऑफ ऐसे भी आए Yeah, एग्जैक्टली वैसे ही आए हो गए तुम कैंडल. मुझे बहुत पसंद था कैंडल रॉय I love Kendall. तुम्हें पता है you look like him a little bit. yeah Yeah, it's crazy. yeah lot of times It's crazy. मैं खुश होता था उसमें अरे मुझे कैंडल रॉय इस साल एमिली है उसमें तो ऐसा मैं खुश Ranjini, होता I'm था sorry we took a long time to come to you. No. लेकिन I was enjoying this conversation. thank you. Thank you. the long time we took in the season also In the to season also. come to लेकिन that for me that moment, that victory, you know, was so beautiful, and that reward is so genuine, it's so true. What did you think about that moment, and how did you want to approach it? Like, you know, was tears real? Like, कैसा था तुम्हारे लिए? It was real and it was not I was not expecting that I would react like this, honestly. Oh, So nice. and the thing was कि we shot the show almost linearly basically. तो Okay. मतलब होता है ना, तो मतलब I was also going, my character's journey was also going through it. हाँ, तो मैं भी expect नहीं कर रही थी. तो since ये show ऐसे एक के मेरे लिए, मेरे character के लिए it was kind of, you know, linearly ये, तो मुझे actually as an actor मैं जी पाई वो character कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा अभी इसके साथ ये हो रहा है, company के साथ ऐसा हो रहा है, and also मैंने thought तो रखा था कि ऐसा है, and it was like कि that scene जो था वो last day में shoot हुआ था. So last day of the it was my last day of shoot also, and I had shot everything. So होता है ना कि it wasn't मतलब everything together. Nice. I mean मतलब that आंसू तो actually तैयार बैठे थे. तैयार ही बैठे थे. मुझे जैसे भी पता आप नहीं ही मेरे था. shoot का. तो वैसे ही तो मतलब वो थोड़ा सा मतलब I mean it was not strategized or it was not, thankfully technically भी सब कुछ ठीक था. अगर out of focus हो जाता या कुछ हो जाता तो मतलब वो recreate करना would have been whatever, but हाँ, तो थोड़ा सा मैं भी ये हो गया कि अरे मतलब Yeah, तो it was ये lovely. जब ये रोई तो हम एक्चुअली टेक में हमारा रियल रिएक्शन है. रोहिणी मैं बता रहा हूँ हम कुछ प्लान नहीं था हाँ, कुछ और कुछ हमें plan नहीं कोई था. आइडिया नहीं था कि रॉन्च ऐसे रिस्पॉन्ड करने वाला. तो हम तीनों जो घबराए मतलब ऑल ऑफ अस वर एक्चुअली मूव्ड. मतलब मुझे रॉन्च को सच में मन किया कि अरे यार इट वाज मतलब वो बहुत ही मूविंग था इवन एज को एक्टर्स द वे शी रिएक्टेड टू दैट. Because I remember we met before the season dropped, right? और उस दौर में I think हम लोग red carpet में मिले थे. हाँ. And I said, you know, what does it feel like? It was such a moment, it's a rush, right? वहाँ पे actually जवाब आप सिर्फ उस second के लिए, उस I think 20 seconds के लिए आप जवाब दे सकते हो. But now today I can ask you कि you know what has it meant to you, या फिर क्या दिया है तुमको pictures season 2 ने? यार मैंने काफ़ी एज एन एक्टर मैं बहुत वेट कर रही थी, एंड आई वाज सेइंग नो टू लॉट ऑफ वर्क बिकॉज इंटरेस्ट नहीं कर रहा था, मुझे कुछ और करना था, और कुछ मतलब इवन एज कैरेक्टर वाइज भी मैं काफ़ी मतलब वेट किया. तो आफ्टर दैट एंड पिक्चर्स का मैं भी फ़ैन हूँ, एंड आई वाज ऑल्सो एन ऑडियंस ऑफ पिक्चर्स सीजन 1. सो मतलब काफ़ी कुछ मतलब बहुत सरियल था मेरे लिए ऑनेस्टली, एंड I tested for the part, and और उससे पहले भी मतलब मैंने ऐसे जांच लगाई कि क्या है मेरा कैरेक्टर, क्या है एंड क्या था एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन धीरे धीरे आई वाज मतलब मैं वो आई वाज रियली वांटिंग टू डू इट एज वेल. सो तो फॉर मी दिस इज समथिंग I am honestly very proud of, because as an actor ना आप काफ़ी कुछ करते हो to obviously to survive and to whatever, you know, like to do a lot of things, but very few projects are there which you can really say it like, you know, I have been a part of this, and it's not all the projects, and of course like gratitude तो है ही obviously सारे whatever के लिए, but I'm just saying कि this is one of the projects like you know कि है कि you know I mean लोग अप्पू बुला रहे कि नहीं?
हाँ बुला रहे, हाँ वो तो मतलब होगा ना। ऐसे नवीन का अच्छा है यार, सब नवीन ने बोला हाँ। था। नहीं, Did you परसों मुझे decide? मैसेज आया एक कोडर, सो दिस इज आई थिंक अ पार्ट कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड पार्टली फ्रॉम फ्यू फ्रेंड्स आई हैव अच्छा from engineering colleges. Okay. There's a person called Manisha. She's a CTO in a big company. Then a couple of engineers, Anita and all. They're a very good tech person. और एक्चुअली में था सीजन 1 में कि हम ऐसे बहुत है ना, हमने दिमाग में कभी आया नहीं था कि ऐसे, और उस समय भी हम रखना चाहते थे, बट उस समय प्रॉब्लम था। और बिस्सो अमित हम बात करते थे कि 5 संभालने मुश्किल हो जाएंगे कैरेक्टर, बिल्कुल। ठीक है, और कैसे मतलब यू नो, और ये तो इंजीनियर हैं तो इनकी दोस्त हो नहीं सकती है कौन तो ये भी एक which is statistically true. So then this time we thought, and I remember तुमने कहा that we had to make sure हाँ that we represent women okay in tech. ये तुम्हारे लिए जरूरी था अर्नब, तुमने बोला था मुझे। हाँ बिल्कुल। और VC वर्ल्ड में भी लाइक रिधि's कैरेक्टर एंड मतलब they are very much there. Yeah of तो आई थिंक वहाँ से हमने सोचा कि करना है बट रियल भी रखना है, और थोड़ा बिटवीन DM, बिटवीन हर एंड बिटवीन जीतू मिसिंग, यू नो दीज 3 कैरेक्टर्स वर ऑलवेज, तो हमें वो संभालना भी था राइटिंग पे, दिखाने में। हम लॉट ऑफ पीपल न्यू दैट इन सेकेंड एपिसोड, correct एंड देन लॉट की हाँ आई थिंक शी लाइक बैंगलोर में वी हैड स्क्रीनिंग जहाँ पे सारे स्टार्टअप क्राउड आता है, तो उनमें बहुत लोगों को ये भी लगा कि अरे ये क्यों नहीं बनी, ये तो सामने ही है, बट बिकॉज वी हैड टू कीप them guessing and this we had to do through Yes. Naveen's character, so we took that choice and I think आते रहते हैं ऐसे मेरी कोडर फ्रेंड्स के कि अरे अच्छा है, बहुत सही है। I think she has done fab because all the toughest lines were her because of the jargons. There are jargons for all of us. अब सबके लिए बिल्कुल। Even अभिषेक बैनर्जी से इसकी यार इतने jargon। अभिषेक ने भी तो सेम बात मुझे बोली थी। हम लोग गोडाउन वाला सीन कर रहे थे तो बोला, उसने कहा कि यार 10,000 करोड़ का आदमी फील कैसे करता है, मैं कैसे क्या करूं, हाउ डू आई गेट इनटू द कैरेक्टर। तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, मैं 50-50 करोड़ की कमिटमेंट करके आ रहा हूं। हालांकि मैं तो बंसल के पास still पैसे नहीं है। उसके बाद कोई ऐसा मोमेंट हुआ कि अर्नब गुस्से से कमरे से चले गए, और वो चले गए और मेरी आंख में आंसू है अभी भी, तो भी मैंने कहा सी दिस इज द ड्रामा, ऐसा we ही need to create this, we should have something like this in the show, you know, real fight हो रही है, एक सेकंड, Real you argument can't हो रहा tell me what happened unless you tell me why it happened. why तो is about the quality of writing, अच्छा उस पे बात हो रही है कि टेंशन मिसिंग है, ड्रामा मिसिंग है, Oh my you know, God. इनफैक्ट सब एक साइड पे थे, मैं एक अलग साइड पे था, तो दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग लिटिल अलोन कि भाई कि मेरे को अभी और ड्रामा चाहिए, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि तो ये थे आपके कि यू नो थोड़ा उसमें थोड़ा टेंशन मिसिंग है, इस बारे में बात हो रही थी और उस पर फिर एस्केलेट हो गया बिकॉज सो मेनी पीपल। और आई थिंक सो 4th एपिसोड नवीन को हमेशा वीकेस्ट लगता था पेपर पे, नहीं मैंने 3rd तक सुना था, 4th के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि अचानक से स्टेक्स कम हो गए हैं, यू नो, और वो बिकॉज कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ दिस थिंग दैट वी आर हम पिक्चर्स टू बना, हाँ उसकी वजह से। और फिर मैं 3 बार शूट कैंसिल कर चुका था, ठीक है, अब चौथे बार कैंसिल करने के लिए मैं क्या बोलूं जा करके, दे आल्सो हैव देयर प्रोग्रामिंग, बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो पहले दिन नवंबर में कैंसिल किया, फिर दिसंबर में फरवरी में लेकिन कुछ क्यों हुआ, फरवरी cancel? में यू वर अबाउट टू स्टार्ट इन फेब में कुछ कोविड की हुआ वजह से कैंसिल नहीं स्क्रिप्ट से हैप्पी नहीं है। तो एक्चुअली हमने लास्ट कैंसिलेशन तो कल से लुक टेस्ट है, आज शाम में पड़ा और कैंसिल। ओह माय गॉड, तो हाँ, तो दिस हैपेंड इन फेब, सो उसके बाद अभी चौथी बार अब मैंने कहा कि भाई, और अब नहीं होगा। आई थिंक वो तो डायनामिक्स बड़ा ऐसे 4th एपिसोड के एंड फाइट की तरह था। मैं तो शूट में गया भी था रोहिणी, मुझे 5th एपिसोड क्लियरली पता नहीं था 5th में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं 4th तक ही सुना था, 4th के बाद घमासान युद्ध हो गया था और 4 दिन में हमें शूट स्टार्ट करना था, सो आई हैड नो आइडिया। और अब मैं जब फाइनली देखता हूँ तो इफ यू आस्क मी माय फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर सीजन, आई वुड से द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द 5th एपिसोड, मतलब इट्स बीइंग टू स्पेसिफिक, बट वो जो लड़ाई के बाद का जो रेपरकशन है और जो जिस तरीके से वो जो सन्नाटा है और शांति है टिल द टाइम वी रिजॉल्व, she also used the word, I can also say I feel very proud to be part of something like that. The first 40 minutes of the 5th episode I really liked, and मैंने पढ़ा नहीं था वो, मुझे नहीं पता कि 5th, मैं जब शूट के वक्त कह रहा था कि 4th तक ठीक है, 5th में हो क्या रहा है कहानी में। तो 4th 5th सबको लगता था पता नहीं क्या है, और it has actually ended up becoming the most favorite for people. Like true, 3rd onwards everybody is happy because it gets real. It gets so real that probably it's uncomfortable, right? Also, most of it is in silence, Yeah. and that is 5th why episode, it's tough to see or gauge on the page
that's what I feel. वो 10 मिनट लिफ्ट पूरा कुछ डायलॉग्स नहीं है तो वो सब तो वो actually one of my favorite sequences is the lift sequence because it's so beautiful. It's not कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है उसमें. And then at some point, Yogi, I think let's talk to you as Yogi, not as Arunab, not as the show's creator, just as the character of Yogi. There's something there which is so, you're tapping into too many things there. You know, there's also position, there's also power, there's also all of that. As an actor, how do you bring that out? Because इतनी चीजें चल रही है तुम्हारी लाइफ में यार, तुम तो डायरेक्ट भी कर रहे हो, तुम तो ये शो you know मतलब रन भी कर रहे मक्खियां भगा रहे थे उस लिफ्ट में 2000 मक्खी थी जब हम घुसे उससे शूट करने के लिए. Oh my god! सिर्फ लिफ्ट में नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ऑन सेट सिर्फ बहुत मक्खियां थी. सिर्फ डायरेक्शन वगैरह नहीं, ऑन सेट राइटिंग भी अरुणाब कर रहे थे. यू नो बहुत सारे सीन्स में बता रहा हूँ, वो लड़ाई बेबुनियाद नहीं थी. हमने बहुत सारी चीजें शूट के वक्त बदली हैं. बहुत सारी राइटिंग सेट पे हुई है which was also done by him. मतलब ना ही सिर्फ एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की भसोड़ी, राइटिंग भी कर रहे थे. सो मतलब वो लाइक आई सेड आइडिया वाज टू गिव द बेस्ट. तो डायलॉग ड्राफ्ट हम अच्छा नहीं कर पाए थे, तो कॉन्शियस कॉल था कि रोज सुबह 1 घंटे बैठेंगे और कोशिश करेंगे लिखने का. Even the DM wala scene which Apu has with like the confrontational thing. So I mean initially the script matlab it required a lot of anger and all that, and then Arunab came and then he changed few things which helped me also as an actor to kind of you know matlab get that thing, like कुछ चीजें जो अब जैसे आप बोलोगे you know it helps you also to kind of I loved it that wasn't that dramatized, you know, that scene. But when you are in that lift, I'm going back to the lift. उस lift में जहाँ पर मक्खियाँ थी, I felt like it was a very nuanced performance, and I felt that ये तुमने best acting की है दोनों season में. तो I think I think you are the third, fourth person whose opinion I will just take as it is, but तो मोस्ट ऑनेस्ट जब सीजन 1 में मैंने एक्टिंग करी थी तो पहला 2 एपिसोड आया था, फिर ब्रेक था. उस पहला 2 एपिसोड देख के वासन वेरी क्लोज फ्रेंड उसने बोला था अरे क्या किया है तूने बहुत घटिया किया मतलब. मतलब बिल्कुल क्या. बट इस बार उसने देखा, उसने बोला कि अरे, तो मुझे लगा अच्छा अगर वासन बोल रहा है क्योंकि इसने पहले निंदा भी की हुई है तो ऐसे एज अ फ्रेंड नहीं बोल रहा. तो मुझे लगता है कि ऑल्सो बिकॉज सी आई थिंक एक्टिंग के लिए मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ जीना. इनफ लाइफ अगर आप जी जाओ, इनफ इमोशंस आप समझ जाओ, तो मुझे लग रहा है सबसे हेल्प तो वहाँ से मिलती है. तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा हेल्प मेरे जर्नी एज अ पार्ट एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर भी थोड़ी चीज़ें देखी है मैंने. तो कुछ झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन है. तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे समझ में आता था. और दूसरा ये एक आइडिया क्रैक हुआ था जो मैंने जस्ट बाउंस किया था. और पहला आइडिया था द आइडिया केम फ्रॉम समटाइम हम लोग दोस्त लोग लिफ्ट में घुसते हैं और कोई भी बटन दबाना भूल जाता है. होता है ना, ये बहुत कॉमन होता है. तो यहाँ से आइडिया आया था और ये सबको बहुत रियल लगा था. फिर इसको मैंने कहा कि थोड़ा सा एम्प अप करते हैं. और क्योंकि ये घटिया बिल्डिंग में रहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉमन, छोटे खराब ऑफिसेज जो हैं, साकीनाका, अंधेरी ईस्ट से पुराने बिल्डिंग्स, तो वो होता है ना लिफ्ट फंस जाती है. और मेरे साथ हुआ है, हम 4 बार 5 बार फंसे हैं. तो ये रियल लगा. और फिर उसके बाद आई थिंक एक इतने बड़े झगड़े के बाद 3-4 लोग कलेक्टिव, एक और डिफीट है. लड़ाई तो हुई है, एक और डिफीट है कि जो चीज के लिए काम कर रहे थे वो भी बेच के आ रहे हैं. तो अब कोई किसी के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं. तो कुछ बचा नहीं है. आई थिंक इसलिए उसकी डायलॉग राइटिंग नहीं करनी पड़ी, रीराइट नहीं. तभी वो बेस्ट सीन है. बेस्ट सीन है. Also वो ड्रामा इतना ज्यादा है that you need to help each other out, right? And suddenly you see, and I always feel like don't tell show. And don't tell show is probably one of those tenets. So yeah, you didn't tell, you showed. But उसको 10 मिनट तक हम survive कर पाएंगे. ये I think is thanks to I think the editors and every lot of music. Bandhu did the music also. But लिखने के बाद जब all writers and thanks to my co-writers शुभम, गरिमा, तला, प्रशांत, हम लोग जब बैठ के होता ना कलेक्टिवली आप कॉन्फिडेंस देते हो एक दूसरे को. क्योंकि सही बात है, पेपर पे तो वो 2 लाइन लिखा हुआ है. Let's start in the lift. रोहिणी, मुझे ना ये शुरू से समझ में नहीं आता था. अरुणाब ना शुरू से लिफ्ट के सीन को लेके ना बहुत ही गंगू थे. मतलब कि दैट इज द क्लाइमैक्स, ये और मुझे नहीं समझ में आता था. मैंने कहा यार एक सीन ठीक है, एक सीन है, और भी तो चीज़ें. और when I finally watched that scene, that's my favorite scene also from the show. जब ये बैठते हैं और कैमरा एंगल नीचे का लगा हुआ है, पैर रख के आप ऊपर जाते हो, बहुत ही गूज बम्पी फीलिंग आ रही थी मुझे. लगा यार ये क्या है, ये तो this is that's what I said, it's very
See, we could not, I mean, as actors, I could not imagine that kind of output after reading it or after, you know, hearing about the scene. But I think the way they have directed it, the way they have used the music and the way they have edited it. To me, that is exactly what has happened, right? Like Naveen, honestly, अगर आगे जा पाया है तो इनके ऊपर, Of course, you know. So I mean, to me, that philosophically, that was Yeah, such a yeah. beautiful way of showing it. Maybe I'm reading too much into it. Maybe you didn't think about it. Maybe I'm No, नहीं, obviously ये तो था ही, ये तो है फोर्थ ही। एपिसोड के एंड में लड़ाई में वो बोलता है तुम मेरे कंधों पे लेके वही तो। घूम रहा हूँ, और फिर तो वो, वही तो बट एज एन एक्टर मुझे लगता है कि वही है, लाइफ अगर आप इनफ जी लो तो आई थिंक एक्टिंग में सिर्फ इसमें तो एक्सीडेंटल हूँ, हाफ बॉल्ड एक्टर कोई मिला नहीं। मेरा मन था कि हाफ बॉल्ड कैरेक्टर हो, तो हाफ बॉल्ड कोई नहीं करना चाहता, तो शायद हम भारत का इकलौता हाफ बॉल्ड एक्टर हूँ मैं, ठीक है। जो सबसे कंसिस्टेंट, इनकी सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इन सीजन में, आई थिंक। तो You were fantastic, really. Probably the I best think- actor from this season। नहीं नहीं, Yeah. अमित बकैती कर रहे हैं। तुम्हारा नॉर्थ स्टार क्या था? यार मेरा ये था, मैं तो बड़ा डरपोक सा आदमी हूँ, तो मुझे ऐसा था कि एकदम ठोस ना हो जाए, बिकॉज एकदम आप एकदम नया जॉनरा बना रहे हो। दिस इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू द फर्स्ट सीजन। Yeah, कुछ भी वैसा नहीं है। बिल्कुल। मंडल ही बदल दिया है, और मुझे तो मंडल इस बार का बेटर हाँ। लगता है। दिस इज माय जोन। ये मेरे को सीजन 1 का मंडल समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था वो चुटकुले। सो आई फाइंड दिस मोर रियल, द एंटायर ट्रीटमेंट। बस यही था कि लोग क्या देखेंगे, तो उस एक्सपेक्टेशन से ना आए और रुक ना जाए। तो आई जस्ट, हाँ, मुझे था कि एकदम ठोस ना हो जाए, और सो हाँ, आई तो वाज वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। I respected a lot of these calls, honestly. Like, I love the fact that Mandal is still not the same Mandal. yeah. Otherwise, again, Mana, where is that character's growth, right? So, अभय ऑल्सो सेड बिकॉज इज नॉट हियर, अभय कुंड बिकॉज शूट कर रहा है बेचारा, तो वो भी चाहता था कि, और बैठ के एक अच्छी चीज़ होती है जो आई थिंक थैंकफुली थैंक्स टू ऑल द एक्टर्स हु वर्क विद अस, इज yeah. वो सिर्फ ऐसे नहीं आते कि अच्छा हम आ रहे हैं ब्लाइंड, वो आके थोड़ा काम करते हैं। एक बहुत यूनिक सी चीज़ हमारे यहाँ होती है जो हम सब ने किया, वो ये स्टाइल कई बार अपने आप को खुद करते हैं। तो एक होता है ना, आप सोचते हो कि मैं इस किरदार में क्या कौन पहनूंगा, हूँ, मैं हाँ। अपने वार्डरोब से क्या निकालूंगी, लाइक इवन रिधि, अब रंजनी, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में ऐसे हुआ करता था, हाँ, पता है तुम्हें? अरे सुन लो भाई यार मैं तो एक चीज बोलना तो चाहता I हूँ, think किसी ने भी नोटिस नहीं करी है इसने- ना। बोलो यार, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। रोहिणी, पता है क्या, मैं किसी ने भी मुझे अभी एक मैसेज नहीं आया वो वाला। पता है, आज बता ही दो। सीजन 1 में जो मैंने कपड़े पहने हैं ना, मैं एकमात्र आदमी हूँ। अब सीजन, ये जो बातें कर रहे हैं सीजन 1 की हूँ, अब हमारे लिए तो, रोहिणी के लिए नहीं, सीजन 2 की होंगी। हमने अपने कपड़े पहने हैं सीजन 1 में, ज्यादातर 95% अपने कपड़े पहने हैं। अब उसमें से कुछ कपड़े मेरे पास आज भी थे, वो पिक्चर्स 1 के कपड़े थे, तो वो और ये फाइनली हुआ पिक्चर्स 2। तो इसमें और मैंने डेलिबरेटली कई जगह लड़ के वो वाली शर्ट्स घुसाई हैं कि कोई पकड़े, अच्छा इसने सीजन 1 में ये वाली शर्ट पहनी हुई थी, यू नो। और वो काफी सीन्स में है, मतलब जो जैकेट्स हैं वो तो नोटिस शायद हुई होंगी, बट शर्ट्स आल्सो आई हैव रिपीटेड दो शर्ट्स इन लॉन्ग सीन्स, बट किसी एक ने भी नहीं मुझे मैसेज किया कि कोई बात अरे नहीं। इट्स द सेम शर्ट। अब आ गया ना पब्लिक कॉन्शियसनेस में, अब आपके कैंडल वेंडल बोल दिया, अब तो क्या शर्ट की लेडी तो हाँ, मतलब मैं, क्योंकि आई डोंट थिंक और किसी कैरेक्टर की अब कपड़े रिपीट IMDb का जो ट्रिविया सेक्शन होता है ना, उसमें अपडेट हो जाएगा ये, हाँ, क्योंकि तुमने बोल दिया है। तो हाँ, लेट्स सी, डायरेक्टर्स Let's डिलाइट hope नहीं है ये, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स डिलाइट जो मतलब इनफैक्ट हम सब हैं। नो, आई वाज हैप्पी कि इन शर्टों को आज तक संभालने का फायदा हुआ है, बिकॉज़ आई कुड यूज देम इन सीजन 2। अमेजिंग, मतलब सो मेनी, मतलब अभी क्या बोलूं मैं, बट हाँ, एनीवे। इंटेंस बंदा है, intense। तुम्हारा नॉर्थ स्टार क्या था? मेरा 2 नॉर्थ स्टार्स थे। एक था कि ऑफ कोर्स लाइक first, and it was very important that the show should just kind of do well and really well, and you know थोड़ा सा था कि like maybe like you know people like it better than season 1, and मतलब ये भी थोड़ा सा था कि अच्छा से मतलब it should really reach everyone should like it, मतलब कोई mixed reviews भी ना आए, like everybody Nice. should kind of, होता है ना, वो भी बहुत confusing है shows में कि you know अच्छा भी है बुरा भी है, कैसा है OTT में वैसे भी समझ में नहीं आता है कि मतलब you know what is it like, you know, it's, Correct. has the show done well, really well or not. Really well or not? सेकेंड था कि
of course, like my character is not replacing the character of Jeetu, but since they are looking for a CTO, which is the character of Jeetu's position, I was like कि मुझे गाली ना पड़े, मतलब होता है ना कि अरे सही। सब लोग वेट कर रहे हैं जीतू के लिए और ये आ जाए जीतू भैया कहाँ है? ये खा गई जीतू अबे, का- ये ये वो खा गई हमारे। नाइस नाइस। तो ये थोड़ा सा मुझे ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। हाँ ये तो मैंने पहले बताया था कि ये आ सकता- फर्स्ट फियर था। अरुणा ये तो बोला था था ही। देखो जस्ट बी रेडी लाइक यू नो बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक यू नो बट नहीं हुआ ना ऐसे। नहीं हुआ मुझे, मतलब मैंने देखा नहीं है और मुझे भी हाँ मतलब ऑब्वियसली यू एज एन ऑडियंस presence in that character is missed, but Correct. वैसा नहीं मिला कि अरे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ कि Cannot भाई ये हो believe गया this is in place of Jeetu. या लाइक और इनफैक्ट you ये know, the हुआ कि अरे CTO इसको क्यों नहीं बनाया पहले, मतलब हाँ, ये मतलब- हुआ, ये बहुत सारे अरे but I'll tell you one more thing because thank you, तुमने याद दिलाया मुझे. You successfully went through a season without Jeetu. हाँ नहीं मतलब मुझे लगता है कि वी ऑल्सो डिड लाइक हॉस्टल डेज 3 which where so we had to No, I'm look saying for in terms of this season. हाँ, I'm with saying in terms pictures, of pictures. with pictures, मैं हाँ. pictures की बात कर रही हूँ because pictures में जो पहला जो track था, you know, with the father and all of it, there was so much so there. much wife, father, family, And to not wife यार वो क्या wife है यार, I love her. Like मुझे ऐसी सौम्या, wife चाहिए. सौम्या। हाँ मतलब I want a wife exactly like her. But इस season में I thought that at some point, like Manvi makes a comeback, right? And we are very happy. Yeah. And I love the little bit, like, you know, she gives that, it's just that look to Riddhi is great. Yeah. Like, that's all you need. Yeah. Because I'm like, I love it. But I know that as a fan, I was hoping that there would be some, यार एक कुछ तो डाल दो डाना, you know, कुछ तो एक hope तो दे दो. लेकिन तुमने नहीं दिया यार. Like, तो क्या मतलब है इसका, नहीं है जीतू अभी इस यूनिवर्स में. नहीं आई थिंक अभी क्या हुआ कि बिकॉज लाइक आई सेड कि ये बहुत कॉमन है इस दुनिया में कि एक आदमी छोड़ के जाता है. एवरी स्टार्टअप दैट 99% की कहानी है. तो एक पॉइंट पे ये भी सोच रहे थे कि मैं क्या पता छोड़ के जाऊं. और दो चीज़ें होती हैं, या तो पर्सनल रीजन से छोड़ के जाते हैं जो कि उसके ट्रैक में था. दूसरा ये होता है कई बार दूसरी प्रोडक्ट बना लेते हैं. हाँ. और CTO सबसे ज़्यादा छोड़ के जाते हैं बिकॉज CTOs आर क्वालिफाइड टू बी एम्प्लॉयड इन एनी स्टार्टअप. या बिल्कुल. These Skill guys, है ना, skill skill है. है. It's one skill which is बिल्कुल. specific, not specific. It's generic. Correct. So you can be a coder anywhere. Anyway. तो ये पेन पॉइंट है. अब ये और ये ट्रैक है. This is a track. Now who do we have? तो पार्ट लॉजिस्टिक्स, पार्ट स्टोरी, पार्ट ये. तो मुझे लगता है जिन्होंने बहुत पसंद किया उन्होंने भी मिस किया, जिनको नहीं मज़ा आया उन्होंने भी मिस किया. तो मिस तो सबने किया, इसमें कोई डिनायल नहीं है. बट एट द सेम टाइम सबको अच्छा भी लगा. तो आई थिंक बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम द कम्युनिटी एटलीस्ट एक बहुत यूनिक सी चीज़ हुई है. आई थिंक ये दुनिया में इंडिया में पहली बार हुआ होगा शो में कि लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट हैं. इफ़ यू सर्च लिंक्डइन पे #pictures you will see 2000s of posts Correct. because that community is there. Of course. तो उन्होंने सबने बोला कि यार ये है ना, ये दिस इज, हम जो उस दिन पॉडकास्ट कर रहे थे सबका पेन है ये कि यार कोई एक जिसे हम सोचते हैं कि हमारे साथ जर्नी में चलेगा वो नहीं होता है. नहीं है बिल्कुल. तो वो एक चीज़ थी जो सक्सेसफुली करी. अब उसके बाद लॉजिस्टिकली अगर वर्कआउट करेगा एंड यू नो तो डेफिनेटली वापस भी आते हैं लोग. ये भी होता है रियल दुनिया में. अच्छा. कई बार नहीं भी आते हैं, वापस भी आते हैं. तो आई थिंक I think every season of pictures यही चलेगा ना. ये मैं तभी तो आपको कह रहा था कि वो डर क्यों था. जैसे रंजनी का भी एक डर था, हमारा भी मेन बहुत सारे डर में से एक डर ये भी था कि बहुत सारी चीज़ें पहले सीजन की नहीं है. जीतू नहीं है, टीम अलग है. आप इस चीज़ में भी नर्वस हो गए. अर्नाब ने इन अ वे फुल फ्लेजेड वे में पहले किया है डायरेक्ट, बट इस किस्म के मेरा डेब्यू आपने है डायरेक्ट किया है और यू नो बहुत सारी टीवी में 150 लोगों ने डेब्यू किया बट मेरा पहला है. ये बहुत सारे शोज का बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं. लेकिन पिक्चर्स तो स्टार्ट टू एंड इज हिज बेबी. His baby, yeah, हाँ yeah. तभी हमारी लड़ाइयाँ भी पहले सीजन 1 में थोड़ी लड़ाई हुई. हम दोनों एक्टर हैं, दोनों मस्ती कर रहे हैं सेट पे, कोई और बना रहा है. बट अभी तो हम लड़ भी रहे थे और हाँ बट या यू आर राइट कि हमें भरोसा नहीं था कि ऐसे पुल ऑफ हो जाएगा. Yeah. इतने सारे फैक्टर्स, 7 साल पुराना शो, मेन किरदार नहीं है, मोस्ट लव नहीं है, बहुत सारे नए किरदार हैं और हो गया. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आई थिंक वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वी पुल्ड दिस ऑफ एंड सबको पसंद आया. आई थिंक यू नो इट वाज एंड लाइक यू सेड प्रेशर ऑफ. बट आई थिंक एंड वो कैरेक्टर का होना ना होना, मुझे लगता है वन थिंग दैट वी यूज्ड टू डिस्कस एंड नवीन ऑफन सेज दैट स्टोरीज आर बिगर देन कैरेक्टर्स. ये तो है ही. मैं इनको कई लोग मुझे पूछते भी हैं कि
तुम्हारा काम अच्छा है या तुम्हारा काम बुरा है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है इफ द शो वर्क्स, इफ द स्टोरी वर्क्स, इफ द स्क्रिप्ट वर्क्स, Everything, एक्टर्स आल्सो वर्क, यू नो, फिर सभी एक्टर्स अच्छे लगने लग जाते हैं। तो इसलिए other way around कम है। कहानी का या प्रोजेक्ट का वर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर लोग, and I'm very happy the way they incorporated his absence in the show. Yeah, I very think nicely. that has only escalated the quality of the drama, I feel. Drama, बिल्कुल। Yeah, and yeah, for people, for I mean, जिनके लिए शो काम किया है, they are, I mean, they have, बहुत- I mean, they don't miss one character's absence, I feel, because it is added to the script. And इतने amazing, Ashish sir is there as Yeah, he's Casey, so good, yeah. Riddhi there, Prachi as investor का character, उसकी life, Appu's character, Sikandar's character, I think everybody is now waiting. सीजन 3 में सबसे मजेदार ये है कि भैया नवीन वर्सेस प्रभास मेहता होगा तो क्या होगा, क्या भसड़े होंगी और क्या होगा, तो आई थिंक वो, और श्रेया वापस आई है। मुझे तो ज्यादा ये है कि हमारे बीच का भसड़ होने वाली है सीजन 3 में। वो मैम वेरी स्कैर्ड ऑफ इट, ये कि मेरे को क्या अभी गब्बर सिंह ही बना देंगे। No, it'll be fun. So I'm looking forward to season 3, but please don't take 7 years. नहीं अब 7 साल नहीं Please do not take 7 years. Please यार, मुझे पता तुम बहुत बिजी आदमी हो, लेकिन ऐसे मत अब करो। कोशिश करेंगे 2 साल में। 2 साल या 2 साल में बनाने। फैंस इनको 2 साल दे रहे हैं। Thanks, only 2 years. तुम 2 लोग- साल में तुम अगर लोग इन्होंने- डेट्स दे देना सब, अभी हमने वीडियो पे ली है। हाँ, प्रायोरिटी। मैं तो यार प्री में भी लड़ने के लिए ऑफिस आता हूँ यार, क्या बोलूं। Amazing. Thank you so much मेरे शो पर आने के लिए, and thank you for talking pictures. Thank you. Hi, this is Arunab. हाय, मैं हूँ नवीन कस्तूरिया। Hi, this is Ronjini. हम लोग आए हैं फिल्म कंपेनियन में पिचेस सीजन 2 में डीप डाइव करने के लिए। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए फिल्म कंपेनियन लोकल को।